The Unfolding Secrets, the IMA Way. We are privileged to have Shri Gopalji Kabra, Managing Director and Group President, the RR Global Group. Popularly, we know this brand by the name of RR Kabel. And the topic of today's session is business sustainability and transformation. He has transformed many businesses and he has, to his credit, sustaining in all the difficult times. So let us learn from him कि कैसे इस माहौल में हम अपने बिजनेस को सस्टेन करें, ट्रांसफॉर्म करें और ग्रोथ करें. I request Praveen Agarwal ji to take forward the proceedings. Thank you. Thank you, Akhilesh ji. A very good afternoon to Kabra ji and all the participants. Welcome back once again. Once again, regret for the technical glitch. We are good to go. We are starting. I have already had the privilege and pleasure of introducing the honored speaker to all the participants. So I will not repeat it. And as Akhilesh ji said, today's topic is business sustainability and transformation. व्यापार स्थिरता और परिवर्तन. जैसा कि हम सबको विदित है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान के सक्सेस के लिए ये बहुत ही जरूरी है. एंड स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जिसमें आज हम सभी खड़े हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में, जहां बिजनेसेस आर अंडर लॉकडाउन एंड रीस्टार्टिंग अगेन एज इफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, इस चीज की महत्ता और बढ़ जाती है. एंड टुडे वी आर लकी टू हैव विद अस एन ऑनर्ड स्पीकर हु हैज टू हिज क्रेडिट स्टार्टिंग मेनी बिजनेसेस एंड inventing and reinventing many processes, products, businesses, brands. So let us pick his brain and उनसे समझने की कोशिश करें कि कैसे हम ये चीजें अडॉप्ट करके डे टू डे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेसेस में आगे जाके सहूलियत मिले. एक मिनट लूंगा. The structure of the show talk will be, we'll have the speaker speak for around 35 to 40 minutes with his thoughts. He'll enlighten us with his thoughts. And then we'll take up the questions and answers. Everybody is requested to keep putting their questions on the chat box, and it will come to me. And at the end of the speaker's talk, for the last 10 to 15 minutes, we'll take the questions to the speaker and try and learn from him. So welcome once again. Akhilesh ji, we again have close to 100 participants and more are joining every second. So I think we'll be back to where we started at 4 o'clock. काबरा जी, बहुत बहुत वेलकम आपका एंड थैंक यू, आपने समय निकाला बहुमूल्य हमको ज्वाइन करने के लिए. सो ओवर टू यू. हम आपके विचार सुनेंगे पहले और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू. इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री अखिलेश जी राठी, ऑल द ऑफिस बेयरर्स एंड कमिटी मेंबर एंड द ऑडियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, it's my privilege to be with you. I was quite surprised and shocked when Akhilesh ji called me that I have to talk. Neither I am a learner like you all, neither I am a successful or great businessman. But since I got a lot of attachment from Indore, because I started my career of education from Indore, so from first to third, I studied in Indore, and my father started his new venture in winding wire from Nepal. They were originally textile, and from Indore, and now my daughter is there for the last 10 years. So I thought already Indore has given me many things in our personal life, social life and business life. And this is another opportunity that Indore wants to give me this opportunity. So I am very much thankful of Indore Management Association. I may speak most of the time in Hindi because which is my favorite subject, and my philosophy is कि जब आदमी को दिमाग की बात करनी है तो अंग्रेजी में बोलो, दिल की बात करनी है तो हिंदी में बोलो. तो आई प्रिफर मोस्ट ऑफ द टाइम, और अभी भी वैसे पिछले कई सालों से देश में जरा हिंदी का चलन भी काफ़ी जोर से है. शुरुआत लॉकडाउन से करूँगा. इन माय ओपिनियन द लॉकडाउन इज नॉट लॉकडाउन, इट्स अ लॉक ओपनिंग. जो कई सालों से हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, जिसमें हमारे पास समय नहीं था कुछ सोचने का, तो ये जो समय मिला है हमको, इसने सच पूछा जाए तो एक तरह से हमारा एक जो दिमाग का लोक यानी जो ताला बंद था वो खुल गया. और इस समय में हमने सबसे अधिक सीखा है, ऐसा मेरा मानना है, और सबसे अधिक हमने कमाया है. धन को छोड़ के क्या है कि हमारी कमाई यानी लोग हम धन तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन धन के अलावा बाकी सब इतना कमाया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको जीवन में शायद कभी नहीं मिलती जो ये मौका मिला है.
I'll restrict to myself to subject, which is transformation and sustainability. This is the right time to make a transformation of our company because people are in a mind to listen and understand and absorb the kind of changes we can bring. In routine time, it was most difficult time because now people have got time, they have learned so many things, they understand, they will come back with lot of relaxed mind, open mind, with fresh energy. ये अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे लेंगे इसको, ये सोचने की बात है क्योंकि शुरुआत बहुत कंपनी में ये भी होने वाली है कि सबसे पहले सैलरी कट होगी या बहुत सारे अलग अलग वातावरण बनेंगे कि किसी की नौकरी जा रही है, किसका कुछ होगा। तो वो सब बातें साइड में रखते हुए जो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरत जो अभी है कि हम कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को तैयार करें। रूटीन टाइम में भी ये आवश्यकता है, ये परमानेंट भी आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले आज की तारीख में हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इमोशनल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को हम तैयार करें। इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको एक नया कल्चर या नई संस्कृति की एक स्थापना करनी होगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कई नई भी है, क्योंकि जनरली देखा गया कि हमारा जो ज़्यादातर बिजनेस डिज़ाइन किया गया है या जो हमारी जो थॉट प्रोसेस चलती है वो सारे बिजनेस डिज़ाइन में हम लोग खाली फिगर की बात करते हैं। तो हम ये टॉप लाइन और जो बॉटम लाइन की जो एक चक्कर में रहते हैं उसके कारण से वास्तव में जो मूलभूत बातें रहती है वो रह जाती है। जो सीईओस कंपनी में आए हैं या जो प्रमोटर है उसके लिए अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, लेकिन जहाँ तक सवाल सस्टेनेबिलिटी का देखेंगे तो कहीं भी जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में खाली फिगर की बातें चलती है वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता है, क्योंकि जब आपका पूरा फोकस ही फिगर पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भटकने का एक साधन हो जाता है, क्योंकि फोकस क्या है कि हमारा वही टॉप लाइन और बॉटम लाइन। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा फोकस वो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ परसेंटेज तक ही वही फोकस होना चाहिए। इसके लिए कारण से क्या होता है कि जब हमारे लोगों की ट्रेनिंग में जब भी हम बात करते हैं, आज जरूरत है लोगों को ट्रेनिंग करने की, क्योंकि लॉकडाउन के समय में जब खास करके मैं हमारी कंपनी की बात बताता हूँ कि लास्ट 15 साल में काफ़ी तेजी से हम ग्रोथ करते गए। 15 लाख के टर्नओवर जब मैं बिजनेस में आया 15 लाख का टर्नओवर था, 6,500 करोड़ टर्नओवर है। आज हमारा 85 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो उस ग्रोथ के समय में कहीं ना कहीं हमारा संपर्क हमारे नीचे लेवल तक जो कंपनी में लोग उनसे नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन के समय में जब वेबिनार के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने देखा, जब क्योंकि हमारा एक संपर्क सीमित लोगों तक ही हो सकता था, तो नीचे का धरातल कहीं ना कहीं थोड़ा भटक गया था या खाली हो गया था। तो ये समय में सब समझ में आया कि हमारा फोकस वापस में क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ लोगों को तक सीमित मात्रा में सिखाया, उन्होंने आगे कितना सिखाया, क्योंकि उनको ये था कि मैनेजमेंट को हमको फिगर की बात देनी है, फिगर अचीव करना है। तो क्या है कि फिगर को अचीवमेंट करने के चक्कर में वास्तव में सारे सस्टेनेबिलिटी के जो मापदंड होते हैं ना, सब खत्म हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से एक समझने की जरूरत है। हमको लोगों को जो तैयार करना है, हम क्या करते हैं, अगर कोई सेल्स का बंदा है तो उसकी पूरा सेल्स की ट्रेनिंग ही देते हैं। अगर प्रोडक्शन का आदमी है तो खाली प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देते हैं। तो अरे कहीं ना कहीं हमने उसके नॉलेज को तो ऊपर बढ़ाया ही नहीं है। हम आदमी को एक रोबोट बना के रखना चाहते हैं, तो रोबोट खाली रोबोट की तरह ही काम कर सकता है, एक इंसान की तरह काम नहीं कर सकता है। इसलिए वास्तव में जो 80-20 का फार्मूला है, जो वर्ल्ड वाइड, जिसके बाद 150 साल पहले किताब बनी, उसके बाद कई लेखकों ने किताब लिखी, तो हमारे आदमियों की भी जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो उसका मेन काम है, उस पर आप 80% ट्रेनिंग दो, लेकिन 20% जब तक हम उसको जनरलाइज ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उसका एक मानसिक विकास नहीं होगा। आज जरूरत क्या है, हमको जरूरत है कि हमारे लोगों के अंदर एक सीखने की भूख हो। आज हमने क्या क्रिएट किया, हमने परफॉर्मेंस की भूख को क्रिएट किया। परफॉर्मेंस की भूख और सीखने की भूख, इसमें बहुत जमीन है। परफॉर्मेंस की भूख ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया, सीखने की भूख आपका एक सस्टेनेबल मॉडल बनता है। जैसे एक सेल्स और मार्केटिंग, जो सेल्स होती है वो शॉर्ट टर्म होती है,
मार्केटिंग होती है और लॉन्ग टर्म होती है। आपकी कंपनी के अंदर क्या बेसिक मूलभूत हम सबको चेंज करना चाहिए कि हमारा कुछ बातें जो है कि हमारी ब्रांडिंग जो है वो लोगों के डीएनए में आनी चाहिए। चाहे वो शुरुआत होती है आपके ड्राइवर से, शुरुआत होती है आपके वॉचमैन से लेके आपके टॉप सीईओ तक या हम मालिक लोग जो भी होते हैं उनके तक होती है। खाली ये टीवी ऐड देने से, आज हम जैसे हमारा आर का एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने काफी टीवी से ब्रांड बिल्डिंग किया, काफी खर्चा किया, लेकिन वो सक्सेस कब होगा? जब हमारी कंपनी के अंदर इंटरनल ब्रांड बिल्डिंग होगी। एक्सटर्नल ब्रांड बिल्डिंग तो आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, तो आप अपना कुछ भी खर्चा करके, आप होर्डिंग लगा के या टीवी ऐड करके, पेपर ऐड करके आप एक ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर की इंटरनल ब्रांडिंग, तो यानी हर चीज में अगर आप देखेंगे तो एक देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, इंटरनली क्या करते हैं। तो हमारा मैक्सिमम फोकस जो रहा सबका, क्योंकि शॉर्ट टर्म ग्रोथ के कारण से, एक दौड़ के कारण से हमारा मैक्सिमम ध्यान रहा कि एक्सटर्नल हम क्या क्या कर सकते हैं, और एक्सटर्नल के चक्कर में हमारा इंटरनल जो है कहीं ना कहीं ढांचा कमजोर हुआ है या उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया। तो जैसे एक जनरल बात करना चाहता हूँ कि जो हम मीटिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबका ये दिमाग में होता है कि हमारी मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड का जब अगर आपका फोकस आता है तो हर चीज वापस एक शॉर्ट टर्म पे आती है। मेरा ये मानना है कि हमारा जो हम सारी मीटिंग होती है उसको रिलेशन ओरिएंटेड मीटिंग होनी चाहिए। रिजल्ट से रिलेशन नहीं बन सकता है, लेकिन रिलेशन से रिलेशन भी बनता है और रिजल्ट भी बनता है। तो फोकस किस पे होना चाहिए? रिलेशंस पे। तो एक और विचार हमेशा रहता है, जो शुरू से एक ईश्वर की कृपा रही, ये हमेशा से ध्यान में था कि जो कुछ भी हमको अचीव करना है उसको आप बाई प्रोडक्ट करिए। क्योंकि जैसे ही आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपका मेन प्रोडक्ट हो जाता है, तो आप ये समझिए कि आपके दिमाग का प्रेशर आपको इतना ज़्यादा सताता है, उसके कारण से जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर हमारा सेल्स का बंदा है या जब हम खुद सेल्स पे जाते थे या जाते हैं कुछ लोग, इसमें से वो टारगेट हो जाता है कि मेरे को इसका ऑर्डर लेके आना है। आप देखेंगे आप भाव कम करके, उधारी बढ़ा के आप माल बेच के आते हैं, लेकिन आप मन में अगर सोच लें कि मेरे को ऑर्डर नहीं लेना है, आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप आपके टर्म्स पे काम करेंगे, व्यक्ति वही है, उसका दिमाग भी वही है, लेकिन उस दिमाग को एक चेंज करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग के लिए नहीं, मैं जा रहा हूँ रिलेशन ओरिएंटेड मीटिंग की ओर। ये छोटी छोटी बातें, ये हमारा एक मेन रोल हो गया है। क्योंकि इसमें जब मैंने प्रवीण से पूछा कि इसमें कौन कौन ऑडियंस है, तो पता चला कि इंदौर के रथी महारथी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और सीईओज और काफी सीनियर्स हैं। तो ये हम सीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा लागू होता है, क्योंकि हमने सबने एक शुरुआत क्या हुई थी ओरिजिनल, कि हमने सबने अपना इतिहास एक छोटेपन से शुरू किया। किसी ने ट्रेडिंग से शुरू किया, किसी ने स्मॉल स्केल से शुरू किया, किसी ने नौकरी शुरू की छोटे से, और आज वो सीईओ बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग आज भी कंपनी को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता क्या होना चाहिए? पहले 5 साल, पहले 10 साल तक, मैक्सिमम 10 साल तक ही आपको कंपनी रन करनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर आप मैनेज करने की परिस्थिति में नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके या हमारे तरीके में गलती है, आपके या हमारे तरीके में खोट है। क्योंकि अगर हम रन करेंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे, आप सोचिए। और जब तक लोग उसको रन करने के लिए नहीं है आपकी कंपनी को, तो इसका मतलब आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आपका पास सोचने का वक्त नहीं है तो आपकी सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आई? वास्तविक जीवन में कि हमारा समय का जिस लेवल पे हम लोग आज हैं, लेकिन ये भी मत सोचिए कि इस लेवल पे पहुंचूंगा तब ऐसे करूंगा। कुछ चीजें बेसिकली आपको शुरुआत से हो जाती है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, यार मेरे पास इतना रुपया होगा तो मैं दान धर्म करूंगा। अरे इतना रुपया होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी थोड़ी है। आदमी शुरुआत से ही एक प्रवृत्ति अगर कर लेता है कि मेरे को नहीं, मैं जो कमाता हूँ उतना दूंगा, उस हिसाब से दूंगा,
तो ये जो देने की प्रवृत्ति, चाहे लोगों को काम की जवाबदारी हो, चाहे धन देने की बात हो, चाहे ज्ञान देने की बात हो, तो हमको ये 1/3 का जो फॉर्मूला में कुछ एक लगभग मैं कोशिश करूंगा कि इस वेबिनार में वो बात नहीं करी, 7वां वेबिनार है लॉकडाउन में, कि वो सब बातें नहीं हो जो पिछले वेबिनार में की है, क्योंकि यूट्यूब पे काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं 20% बात हो रहेगी, बाकी सारी की सारी आपसे नई बातें करना चाहता हूँ कि ये आपका 1/3 समय से ज्यादा डे टू डे में नहीं जाना चाहिए। अगर 1/3 से ज्यादा समय आपका डे टू डे में जाता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके काम के तरीके में या आपके विश्वास करने के तरीके में ज्यादा गलती है। क्योंकि अभी भी हम सबको, कई लोगों को लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि क्या हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हमने जो शुरुआत की ना, वो आदत हमारे अंदर अभी तक गई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस आदत को हमको निकाल के फेंकना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट के तरीके हर 5 साल से हर 10 साल में बदली होते हैं। इस लॉकडाउन के बाद एक नया तरीका आएगा। अब एग्जिट क्या आएगा, आज मैकेंजी अलग बात बोल रहा है, बीसीजी अलग बात बोल रहा है, जो वेबिनार में अलग स्पीकर अलग बोलेंगे, फिर भी एक नया प्रारूप जो बनेगा वो अलग ही बनने वाला है, जिसके बारे में शायद हम लोग कोई सोच भी नहीं पा रहे क्या होगा। तो सारा का सारा फोकस हमको क्या करना चाहिए कि हम शुरुआत करते कंपनी से, एक छोटी दुकान की या छोटी फैक्ट्री की, या सीए लोग है तो सीए की एक फर्म चालू करते हैं। लेकिन कंपनी को हमको एक ऑर्गेनाइजेशन समझ के चलाना चाहिए। होता क्या है कि चूंकि हम कंपनी शुरुआत करते हैं तो हमारा वो कंपनी तक का लेवल रह जाता है। आज हमने भी जब दुकान शुरू की, जब मैं बिजनेस में आया था, हमारे पास 4 लोग थे। आज 4600 लोग इंडिया में काम करते हैं, 600 लोग बाहर काम करते हैं, 5200 लोग की टीम लेके चलते हैं। लेकिन वो 5200 लोगों की टीम तैयार कोई रातों रात एक दिन में तो हुई नहीं कि आप जितने भी लोग हैं, आप लोग के पास अधिक लोग हैं। तो इस तैयारी में हमको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम ये आप ये समझ के चलिए कि हमारी वास्तविक संपत्ति जो है वो हमारे लोग हैं। वास्तविक संपत्ति जो है हमारे सप्लायर है, और हमारा पूरी की पूरा फोकस क्या लगा हुआ है, हमारे ग्राहक की ओर। ग्राहक जरूरी है, लेकिन ये मत भूलिए कि जब तक हमारे सप्लायर नहीं मजबूत है, ये हमारे लोग मजबूत नहीं है, तो ग्राहक भी क्या करेगा। ग्राहक भी जरूरी है, लेकिन हमने क्या किया, पूरा का पूरा फोकस सेल्स ड्रिवन कर दिया। जबकि हम क्या कर सकते हैं कि सेल्स के बदले हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है, हमारी पॉलिसी में कितना दम है, हमने ब्रांड कितना क्रिएट किया है, हमने पुल फैक्टर कितना खड़ा किया है, क्या हमारा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में टॉप में है, क्या हमारा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है क्या। अगर हम ये 6 बातों पे ध्यान देंगे अच्छे से, जो बेसिक मूलभूत है, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको सेल्स के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अननेसेसरी पूरा का पूरा ताकत और पूरी की पूरी एनर्जी सेल्स में लगाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि 80% ताकत आपके सप्लायर्स के लिए, आपके जो एम्प्लॉय आपके आदमी है उसके लिए, और ये जो 6 बातें जो मैंने कही सेल्स के लिए जो महत्वपूर्ण है, अगर वो इस बातों में अगर 80% ध्यान देंगे तो आपका सेल्स भी सस्टेनेबल होगा, अच्छे प्राइस में होगा, अच्छे पेमेंट टर्म्स में होगा, अच्छे सम्मान के साथ होगा। हमको जो व्यापार करना है उस व्यापार के अंदर हमको एक आपका कल्चर डिजाइन करना चाहिए। होता क्या है, हम पूरा बिजनेस प्लान डिजाइन करते हैं, क्योंकि सारे दिन वो आंकड़े के बीच में लगे हुए, किसी के पास समय नहीं है। हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि सबसे कम आयु अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमारी खुद की, हमारे ज्यादा हमारी कंपनी की, कंपनी से ज्यादा उसके ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उसके ब्रांड की, और ब्रांड से भी कहीं ज्यादा आपकी कल्चर की है, आपकी संस्कृति की है, आपकी विचारधारा की है। आज कभी जब भी हम कोई विचारधारा की बात करते हैं तो क्यों आज भी इतने सालों बाद अगर व्यक्ति का नाम देखे तो स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी का नाम आता है, और किसी का नाम सामने नहीं आता है, क्योंकि दोनों ने ही अपने आप को व्यक्ति से एक विचारधारा, वो तो सीधा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे सर, स्वामी विवेकानंद या ऑर्गेनाइजेशन थे,
उन्होंने खुद को अपने आप को एक विचारधारा बना दिया। हमको भी हमारी कंपनी को एक विचारधारा, हमारे लोगों से एक विचारधारा, जब तक हमारी कोई विचारधारा को नहीं बनाएंगे तब तक ये रोज का हमारा सस्टेनेबल नहीं आएगा। हम लोग ने कोशिश की कि हम हमारे लोग फॉलोअर हो। फॉलोवर आपका सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। फॉलोवर आपके लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। फॉलोवर कुछ लोग आप मजबूरी में हो सकते हैं, लेकिन आपके वास्तव में बिलीवर होने चाहिए। अब बिलीवर कैसे होंगे? क्या हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो होंगे? क्या हमको अच्छे पैसे देंगे तो होंगे? दोनों से नहीं होने वाला दोस्तों। वास्तव में हमारे बिलीवर लोग तब होंगे जब हमको अच्छा करते हुए देखेंगे, हमारे व्यवहार को देखेंगे। वाणी कई लोगों की बहुत सुंदर होती है, कुछ लोगों का व्यवहार सुंदर होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी वाणी भी सुंदर होती है, लिखाई भी सुंदर होती है, व्यवहार भी सही होता है। तो जीवन में ये तीनों के तीनों को सुंदरता लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो सारी संपत्ति है वो संपत्ति है क्या? ये धन। जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं उनको नोटबंदी के समय तकलीफ हो गई। आज हमने 1.5 महीने में देख लिया कि कोई धन की कीमत नहीं है। कितने भी पैसे हो, बिलियनर हो, रिचेस्ट आदमी हो, चाहे इंदौर के, चाहे मुंबई के हो, चाहे देश के हो, आप आपके घर के बाहर नहीं निकल सकते हो। आपका खुद का प्लान होते हुए भी आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो हमने इस लॉकडाउन में वास्तव में एक धन का महत्व देख लिया कि धन का महत्व क्या है। क्योंकि धन जो है, लक्ष्मी जो है, वैसे भी बहुत चंचल है, किसी के पास स्थायी नहीं रही। आपको भी मालूम है इंदौर में कितने बड़े सेठ थे, आज है, उसमें से नहीं है। तो एक साइकिल, ये चक्र है। लेकिन हम उस चक्र के इर्द गिर्द घूमने के बदले अगर कोई हम हमारा स्थायी धन, हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा की गई योजनाएं, हमारे लिए द्वारा किया गया एम्प्लॉयमेंट, अगर हम कल्चर पे फोकस करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कोई ये टॉप लाइन और इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टॉप लाइन के साथ साथ बाकी चीजें बहुत आवश्यक है। कितने दिन हमारा सम्मान होगा कि हमारे पास इतना रुपया इसलिए सम्मान होगा? कितने दिन हमारा सम्मान होगा कि हमारा टर्नओवर इतना होगा तो होगा? हमारा वास्तव में, हम इस संसार में जो आए हैं इसका कुछ पर्पस तो होना चाहिए। या हमारा व्यापार जब हमने शुरू किया उसका एक पर्पस बनाया क्या? या व्यापार एक थोड़ा स्टेब्लिश हुआ तब कोई नया पर्पस बनाया क्या? जैसे शुरुआत की वैसे शुरू करते गए। पहले 5 आदमी काम करते थे, 20 आदमी करते हैं, 500 आदमी काम करते हैं, 1000 आदमी काम करते हैं। लेकिन समय समय पर एक समय ऐसा आता है कि हमको हमारी कंपनी के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्टिव, हमारा एक गोल बगैर फिगर का बनाना बहुत जरूरी हो गया। आने वाला समय एक अलग समय आने वाला है। आपके पास लोग आएंगे आपकी शक्ति को देख के नहीं, आपके पास कितना ज्ञान है उसको देख के आएंगे। 1983 से एक ही बात कहते आया हूं कि भगवान बदल गए। पहले लक्ष्मी जी का जमाना था, लोग पैसे से पैसा कमाते थे। आज सरस्वती का जमाना है, लोग विद्या से पैसा कमाएंगे, विद्या से नाम कमाएंगे, विद्या से सम्मान कमाएंगे, विद्या से एक अपनी विचारधारा को क्रिएट करेंगे। तो फोकस जो हमको है ये भी बहुत चेंज करने की जरूरत है। आज लोग बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, क्या हमने उनको कितना तैयार किया? क्या हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक स्कूल और कॉलेज की तरह नहीं चला सकते कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो होशियार हो? लेकिन एक कहीं भय रहता है कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं ज्यादा होशियार हो जाएंगे तो हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारे सामने, मेरे सामने कैपेबल बन जाएगा, मेरे से ज्यादा होशियार दिखेगा लोगों में, या मेरे आने वाले जो बच्चे बिजनेस में आने वाले हैं उससे ज्यादा होशियार व्यक्ति मेरी कंपनी में कैसे हो? क्योंकि सबसे बड़ी भूल हमने भी करके रखी, दिमाग के अंदर सेट करके रखा है कि हमने कंपनी तो हमारे बच्चों के लिए बनाई है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी गलती इस संसार में जो हम लोग करते हैं, खास करके भारतीय लोग, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, इसलिए उनकी कंपनियों की लाइफ बहुत लंबी है।
हमने कंपनी कंपनी के लिए बनाना चाहिए, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहिए। आपके जो वेल्थ है वो आपके बच्चों के लिए है, उसमें कोई मना ही नहीं है, आपको देना चाहिए दान। अजीम प्रेम जी ने 25 लाख का दान दिया, शौक शौक से दीजिए, लेकिन कंपनी सिर्फ बच्चों के लिए है, इससे भी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि मैं इंदौर में काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आजकल काफ़ी आना जाना 10 साल में बढ़ा है और इंदौर से पहले भी संपर्क रहा है। वैसे भी हमारी ये मूलभूत भारतीय संस्कृति है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस बच्चों पे, वो भी खास करके लड़कों पे, लड़कियों के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़के ही सब काम आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये हम किस समाज में आज तक, इस मॉडर्न समाज में आज भी लड़के लड़के में इतना फर्क रख रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय, एक चिंतन का विषय है। आज एक स्टडी कर रहा था मैं आप लोगों से बात करने के समय कि क्यों अमेरिका में सारे टॉप पोजीशन में जो सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का सत्य नादेला, गूगल का या एडोब के, ये सारे जो टॉप सक्सेसफुल सीईओज है, वो सारे के सारे आईआईटी और आईआईएम की क्यों है? भारत के टॉप 5 कॉर्पोरेट कंपनीज में जो सीनियर लीडर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही क्यों है? बाकी कंपनी से भी हो गया, मैं बोलता हूँ, तो एक कुछ केस स्टडी मैं बनाना चाहता हूँ। मैं तो कॉलेज गया नहीं, लेकिन आईआईएम में एक बार मैं कोर्स करने गया था 5 दिन का, तो वहाँ के प्रोफेसर ने एक बात बताई मेरे को, जो बात हमेशा के लिए एक लाइफ में अपील कर गई। बोले यहाँ की जमीन, यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ की दीवारें बोलती है कुछ सीखो कुछ सीखो कुछ सीखो। उन्होंने एक वातावरण निर्माण किया, एक एनवायरनमेंट निर्माण किया। तो हमको भी हमारी कंपनी के अंदर एक वातावरण निर्माण करना चाहिए, एक अपना क्या बोलते हैं, इस प्रकार का एक संस्कार, एक प्रकार का कल्चर एक डेवलप करना पड़ेगा। हमारे से भी लोग छोड़ के गए, ऐसी बात नहीं छोड़ के गए। हमारे से जो छोड़ के गया आज बहुत सक्सेसफुल है। एक लड़का जिसको मेरे हाथ के नीचे ट्रेनिंग दिया, आज एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा काम करता है। हमारा जो ट्रेडिंग डिवीजन एक्सपोर्ट का, उससे 4 गुना बड़ा काम करता है, वो भी इंदौर का ही है ओरिजिनल। तो खुशी है हमको। हमको खुशी खाली ये नहीं होनी चाहिए कि जब तक व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन हमने ऐसे संस्कार दिए। वैसे 2 हमारे केबल फैक्ट्री में थे, दोनों के दोनों केबल कंपनी में गए, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारा सीक्रेट या हमारा काम का तरीका वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हमने लोगों को खाली तैयार नहीं किया, लेकिन लोगों के अंदर ऐसे संस्कार दिए। वो संस्कार दिए नहीं, वो संस्कार उन्होंने जो हमको, जिस ढंग से हम काम कर रहे थे, जो हमको देखा कि हमारे लोग, हमारे जिसके साथ हम काम करते हैं, वो इतने ईमानदार है, वो इतने एथिकल है। ठीक है, किसी न किसी कारण से मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ से काम सीखा हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो एथिक्स सीखे, यहाँ पे जो संस्कार सीखे, उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तो हमारी खुशी इस बात की है कि हम लोगों को, हमारे यहाँ जब आते हैं तो खाली उसके काम जितनी बात न करके, उसको बाकी जब बातें करेंगे तो आप देखेंगे आपका आउटपुट बहुत अलग आएगा। कुछ एक बातें जो मैंने करना चाहता हूँ कि प्रोसेस और सिस्टम, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी तो प्रोसेस और सिस्टम की बहुत बात आएगी। प्रोसेस और सिस्टम के लिए हम बाहर से भी लोग हायर कर सकते हैं। प्रोसेस और सिस्टम के लिए कुछ हम अपने लोगों को भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के सामने हमको लोगों के दिमाग को सेट करना है, वो काम हमारा होगा। सिस्टम के सामने लोगों को दिल को सेट करना होगा। जब तक हमारे लोगों के अंदर, या जो हमारे तीनों स्टेक होल्डर, हमारे सप्लायर, हमारे एम्प्लॉय और हमारे कस्टमर, ये तीनों के अंदर हमारी बातें जब तक उनके दिमाग और दिल में ये स्थायी नहीं होगी, तब तक हम कितना भी अच्छा प्रयास कर लें, कितनी भी जो इसमें चार्टर्ड अकाउंट लोग कितनी भी अच्छी सर्विसेज दे दे, कितना भी कुछ कर ले, तो वास्तव में अगर हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो कुछ भी इसमें से होना मेरे को लगता नहीं है कि पॉसिबल है। क्योंकि हमने तो खाली काम से काम ही मतलब रखा। तो अब ये समय आ गया है कि हम सब बड़े शांति से विचार करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन 15 दिन और है और मौका मिला है। इसके बाद भी जितना बिजनेस होना चाहिए उतना बिजनेस नहीं होगा, 50% रहेगा या 1/3 रहेगा, डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस रहेगा। तो हमको सोचने का और समय मिलने वाला है।
इस समय में जब हम लोगों से ये परिवर्तन की बात करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। और आज जो हमको ये मौका मिला है, वो सबने हमने हिंदी पिक्चर देखी होगी कि ये जिंदगी ना मिले दोबारा, वैसे ही व्यापार में ये ऐसा मौका हमको परिवर्तन का दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा का पूरा हमको ये लाभ हमको लेना चाहिए। अब कुछ एक बातें जिसमें हमारा ध्यान आजकल कम गया है, क्योंकि हम लोग सब एक अलग परिवार से भी आते हैं, अलग संस्कारों से भी आते हैं, कि हम लोग कैपेबिलिटी असेसमेंट में नहीं मानते। जो बहुत प्रोफेशनल कंपनी है उसमें तो होता है, लेकिन जनरली आज भी इंडिया में 80% कंपनियां प्राइवेटली ओन्ड है। तो ये हमको देखना है कि हमारे लोगों में वास्तव में उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर विलिंगनेस कितना है। मैं तो ये चाहूंगा कि सर, मेरा खुद का भी, हमने एजेंसी हायर की है, मेरी पत्नी भी बिजनेस में है, बच्चे लोग भी बिजनेस में है, हम सबका कैपेबिलिटी असेसमेंट करा रहे हैं। इसमें कोई दुख की बात नहीं है और कोई किसी में मन में संकोच की बात नहीं है, क्योंकि अब ये समय आ गया कि वास्तव में हमको भी हमारी कैपेबिलिटी असेसमेंट करानी चाहिए, ताकि हमको भी किस प्रकार के कोच चाहिए। हम कितने भी होशियार हो, लेकिन समय समय पर हमको कोच की जरूरत होती है। आज इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन में लोग क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए आते हैं। लोग हार्वर्ड में कोर्स करने क्यों जाते हैं, लोग आईआईएम में कोर्स करने क्यों जाते हैं, ये शॉर्ट कोर्स जो होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो समय के साथ चीजें चेंज हुई है, हमको ये समय नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं कर रहे। मैं तो कहूंगा कि आपके बच्चों को, आप बच्चों का कराइए सब, हमको भी ध्यान में आएगा वास्तव में हम जिनके लिए ज्यादा कर रहे हैं वो वास्तव में उसके काबिल है कि नहीं। हमको सक्सेशन प्लान बनाने में इजी होगा। बच्चों को आप अच्छे विचार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, शुरू में 2 4 5 साल कंपनी रन करने की दीजिए, जो जो स्टेब्लिश है बाद में उनको भी आप कंपनी मैनेज करने को दीजिए। मैनेज और रनिंग और ओनरशिप और मैनेजमेंट, इसका डिफरेंस जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक ये मारामारी हमारे हमेशा चलती रहेगी। आने वाला समय काफी इन्वेस्टमेंट आएंगे, ऐसा जो बातें चल रही है, काफी इन्वेस्टमेंट आने के मौके हमने कुछ खोए भी हैं, लेकिन वापस ये जिस हिसाब से अनाउंसमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, लोग भारत की ओर देखेंगे, ये पूरी उम्मीद है। लोग इसको इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा भी समझते हैं, अच्छी भी होगी, लेकिन साथ साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अब इंडिया में आएगी। मल्टीनेशनल जब कंपनी आती है तो एक उनकी ताकत अलग होती है, उनके पास पैसे की ताकत होती है, उनके पास ब्रांड पावर की ताकत होती है, उनके पास बड़े बड़े लोग लेने की ताकत होती है। तो शुरुआत में शॉर्ट टर्म में हमारे लिए बहुत रोजी रोजी लगेगा, लेकिन आने वाले 5 साल बाद हम सबको लगेगा कि हमारे सामने लोकल कंपटीटर, हमारे लोकल भाई नहीं, लेकिन ये विदेशी कंपनियां आ गई है। आइए, उनको हमको आना चाहिए, हमको स्वागत उनका करना चाहिए। जब तक व्यापार में कंपटीशन नहीं है, तब तक व्यापार का कोई महत्व नहीं है। कंपटीशन और कंपैरिजन, ये दोनों बहुत फर्क है। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों सबसे कि जीवन में कंपैरिजन कभी नहीं करें, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यापार में हो, क्योंकि कंपैरिजन करने से कहीं ना कहीं हम हमारे लोगों को खोते हैं। एक माँ बाप के 3 बच्चे होते, तीनों इक्वल नहीं होते। हम एक ही होते, एक ही बेटा होता तो बाप बेटे इक्वल नहीं होते। ये हमने सबने कही कहानी सब सामने देखा हुआ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन के अच्छा कलाकार नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन लोग ने कंपेयर उससे किया। तो ये भी एक चैलेंज हमको आएगी आगे चल जमाने में, तो उसके लिए भी कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत, कई घरों में देखता हूँ कि इस प्रकार की चैलेंज लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को आज उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। हम लोगों ने इतनी मेहनत शायद इसलिए की कि हमारे पास कुछ था नहीं। तो ये जो समय का फर्क है, या वातावरण का फर्क है, या रिक्वायरमेंट की फर्क है, या आवश्यकता की जो फर्क है, ये सारे चैलेंजेस हमको ये समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जब तक हमारे स्टेक होल्डर, जो हमारे सप्लायर है, हमारे लोग हैं और हमारे ग्राहक है, इनका हमारा संबंध एक तराजू की तरह होना चाहिए।
तराजू जैसा ईमानदार चीज कोई नहीं होती है। गांव में भी लोग चुंबक लगा के उसको जरा वजन को आगे हेराफेरी कर लेते हैं। जब तक हमारे लोगों की आवश्यकता हमारे लिए और हमको हमारे लोगों की आवश्यकता उनके लिए, या हमारे सप्लायर की आवश्यकता हमारे लिए और कस्टमर की हमारे लिए, जब तक हम दोनों का इक्वल लेवल पे आवश्यकता नहीं है या इक्वल लेवल पे जरूरत नहीं है, तब तक ये रिश्ता जो है ये भारी और हल्के का रहेगा। और जब तक आपका ये रिश्ता भारी और हल्के का रहेगा, आपका सस्टेनेबल मॉडल नहीं आता है। रिश्ते सस्टेनेबल तभी होते हैं जब ये रिश्ते में आपके तराजू में न्यूट्रल होना चाहिए, आवश्यकता है। तो एक हमने सबने अपने केबिन के अंदर जरूर एक तराजू लाना चाहिए और उस तराजू को देखते रहना चाहिए कि मैं मेरे सप्लायर के साथ जो व्यवहार करता हूँ, और जब मेरा ग्राहक मेरे साथ वैसा व्यवहार करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। अगर ऐसा हम रोज 1 या 2 मिनट सोचेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब हमारे एम्प्लॉय के साथ जब व्यवहार करते हैं तो उस समय सोचना चाहिए कि कोई मेरे बेटे के साथ या मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, अगर नौकरी करती है या नौकरी करती है तो क्या लगता। एग्जाम्पल हमने खुद के ऊपर ही लेके करना चाहिए तो शायद चीजें बहुत आसानी समझ जाएगी। दोस्तों, इतना बड़ा कुछ अलग दुनिया में है नहीं। हमको खुशी और सफलता के बीच की मारामारी और दूरी को तय करना है। खुशी जो है वो टेम्पररी है, सफलता है वो परमानेंट है। और मैं समय सीमा के साथ ध्यान रखते हुए जो मेरे 2 महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा बोलता हूँ, और एक बात तो मैंने अभी उसको अपना चेंज करके बनाया था कि हमको मी से हटके वी में आना है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, or whether those who are CEOs are here, I'm requesting them, all of them, to come out from me. मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, उसके बदले हमने किया, हमने किया, हम करेंगे। आपका एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि मी जो है ME, वो M को खाली एक आपको उल्टा करना है। E तो वैसे के वैसे रहने वाला है। M में भी आपको सही भी ज्यादा लगने वाली नहीं है। वैसे खाली M को एग्जैक्ट उल्टा किया आपने तो V हो जाता है। तो मी का मैंने मतलब बनाया मनी अर्निंग है और वी का बनाया है वेल्थ अर्निंग। मनी अर्निंग है वो टेम्पररी है और जो वेल्थ अर्निंग है वो परमानेंट है। वेल्थ में मनी भी आती है, तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मनी छोड़ दो, लेकिन वेल्थ में आपका व्यवहार आता है, आपका स्वभाव आता है, आपका काम का तरीका आता है, वो वेल्थ आपकी जो है वो आजीवन रहेगी। तो ये मी से वी की यात्रा बहुत सिंपल है, बहुत कम दूरी है। उसको खाली हमको एक उसको क्रॉस करना है, अपने दिमाग को और दिल को सेट करना है। और लास्ट में जो एक ही बात कहूँगा कि उसके पहले मैं एक इंदौर की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो मेरे दिमाग में आई है, मैं इस पर एक आर्टिकल बना रहा हूँ जो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा। जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, उसमें एक बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, उसके एक रास्ते मैंने बनाए हैं। उसके ऊपर मेरा आर्टिकल, क्योंकि मैं इतना लिखने में इतना होशियार नहीं हूँ, तो मैंने एजेंसीज को हायर किया, कंसल्टेंट्स को हायर किया है देश के लिए। मैं खुद रियल एस्टेट में नहीं हूँ, लेकिन इंदौर एक वर्क फ्रॉम होम का कैपिटल बन सकता है। इस पे आप सभी, चूंकि इंदौर में एसोसिएशन के लोग हैं, आपके संपर्क से इंदौर के पेरीफेरी में बड़े बड़े टाउनशिप 5,000 लोगों की, 10,000 फ्लैट की आपकी बननी चाहिए। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तभी सक्सेसफुल होगा जब वर्क फ्रॉम होम का एक वातावरण बनेगा। आज इन्फोसिस, गूगल या फेसबुक या TCS जो कंपनियों में इतना कल्चर बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन्होंने एक वो ऑफिस में एनवायरनमेंट खड़ा किया। वैसे ही अगर जो घरों में अगर लोगों के एनवायरनमेंट, उस कॉलोनी में या उस एरिया में या उस पूरे मोहल्ले में एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो ये हो सकता है। तो ये इंदौर के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो केस स्टडी में मैं इंदौर का नाम भी दे रहा हूँ कि अरे इंदौर की, क्योंकि इंदौर में एक तो कोई जातिवाद नहीं है, कोई रीजनल लैंग्वेज का है नहीं, मौसम भी अच्छा है, खाने पीने का भी है, इस कॉलेज मिनी मुंबई, तो सारे के सारे शहर का शहर भी है, टायर 1 की भी फैसिलिटी है और टायर 2 की, टायर 3 की कॉस्ट में। तो उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को इंदौर में लगती है। वैसे इंदौर काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन ये एक लगा कि चूंकि इंदौर में वैसे के लोग हैं, तो आखिर कुछ काम की और कमाई की बात भी की जाए या डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इंदौर के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अब अंतिम में एक ही शब्द कहूँगा कि दोस्तों,
कि व्यापार एक कर्म है, रिश्ता एक धर्म है। जब तक ये कर्म और धर्म ये दोनों साथ में नहीं चलेगा तो खाली कर्म से भी काम नहीं चलेगा, खाली धर्म से भी नहीं काम चलेगा। आपने मुझे शांति सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच काबरा जी। इंदौर के करीब 125 से ज़्यादा बिजनेस हाउसेस के लोगों ने और सीईओज ने प्लस सीनियर मैनेजमेंट के लोगों ने आपको सुना, और आई एम श्योर बहुत लर्निंग में मैंने पर्सनली बहुत लर्निंग ली है आपके टॉक से, फ्रॉम मी टू वी, फ्रॉम मनी अर्निंग टू वेल्थ अर्निंग। थैंक यू सो मच। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक देम। काबरा जी, एक चीज बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट इज सेड कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अबाउट इम्प्रूविंग, इट इज रीथिंकिंग। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक परिवर्तन नहीं है, एक पूरी नई सोच है। अब आपके हिसाब से अब इसमें क्या है, जैसे हमारे ऑडियंस में सब टाइप के लोग हैं, छोटे बिजनेसेस भी हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स भी हैं, जो छोटे से जैसा आपने बोला बड़े हुए चालू हुए सब टाइप के हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक तो होता है इंटरनली ड्रिवन और एक होता है एक्सटर्नली ड्रिवन, की कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको बताए कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है बिजनेस, क्या करना है। तो इंटरनली ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा सक्सेसफुल है या एक्सटर्नली ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा सक्सेसफुल है? इसमें देखिए ज्यादा सक्सेसफुल इंटरनल होगा, लेकिन प्रोसेस और सिस्टम का, क्योंकि चूंकि अगर जो मीडियम साइज की कंपनी हम बड़े भी हैं तो हो सकता है कि हम पेपर वर्क में कमजोर हों, लेकिन हम दिल और जो मन से जो बातें करनी है, जो चेंजेस लाना है, वो इंटरनल करना चाहिए। बाकी प्रोसेस और सिस्टम के लिए आपको आउटसोर्स करना चाहिए, वो फर्स्ट चॉइस है। लेकिन लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा तो हम बाहर से भी एजेंसी लाके कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट प्रयास हमने खुद ने करना चाहिए, नहीं तो बाहर से करना चाहिए। एक विषय रह गया था कि कुछ चीजें जो आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी हमको खुद के बदले हमारे आदमी से करानी है, आउटसोर्स कराती है, वो आउटसोर्स करना चाहिए। बाकी खुद ने करना चाहिए, तो हमको दूसरे काम के लिए और समय मिल जाएगा। बिल्कुल। एक और कहावत है कि अगर आपको दुश्मन बनाने हैं तो आप कोई चीज या उस पर्सन में बदलाव करने की कोशिश करें, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट चेंज। बट जैसा आपने बताया कि पूरे इंटरनली टीम को मोटिवेट करके साथ में लेके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, मतलब छोटे बिजनेसेस कई बार ये चैलेंजेस फेस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो सपोर्ट या वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। उसके लिए कुछ टिप्स या गाइडलाइंस? उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई में कमी होगी सर। अगर सच्चाई में अगर कमी नहीं है तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी बात, मैंने कहा ना कि आपके वो फॉलोअर होंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे, अगर आपके बिलीवर है तो आपकी बात मानेंगे। आपने क्या वो व्यवहार में पहले कुछ किया ऐसा तो आपकी बात सुनेंगे। बाकी कहीं से सुन के आ गए, या किसी ज्ञानी ने बोल दिया, किसी कंसल्टेंट ने बोल दिया इसलिए आप करना चाहते हैं तो नहीं आगा। तो उसके पहले आपको वैसा आपका करके बताना पड़ेगा। मैंने कहा ना, जो 3 व्यक्ति मेरे यहाँ छोड़ के गए, तीनों ने सेम बिजनेस में नहीं आए, तीनों बहुत बड़े बने, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा देखा कि हमने ऐसा नहीं किया। एक मेरा पार्टनरशिप में काम था, जब मैंने छोड़ा तो मेरे पार्टनर को बोल के आया था, मैं एक वादा करके जाता हूँ, जो कुछ यहाँ सीखा हूँ मैं आने वाले 5 साल तक उस कस्टमर को हाथ में लगाऊंगा, उसकी जिंदगी भर लगाऊंगा, जब तक तो मेरे कस्टमर को हाथ में लगाएगा। तो लोगों ने देखा हमने किया वैसे, तो जो अगर हमने किया है तो लोग समझेंगे। जी काबरा जी, एक मैं थोड़ा सा आपका समय चाहूंगा, 5-7 मिनट आप थोड़ा इस चीज पे भी, क्योंकि हमारे ऑडियंस में काफी सारे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, और फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या 2 भाइयों के बीच में या बाप और बेटे के बीच में कैसे समन्वय हो और कैसे बिजनेस एथिक्स हो और किस तरह से चीजें डे टू डे कैरी फॉरवर्ड की जाए। एंड जैसा कि आपका भी है, आपका एक संयुक्त परिवार है, बट आपने काफी प्रोफेशनली उसको पूरे को मैनेज किया हुआ है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो 5-7 मिनट थोड़ा उस पे फैमिली मैनेजमेंट और अ सस्टेनेबल बिजनेस पे भी लाइट थ्रो करेंगे तो ऑडियंस का काफी इंटरेस्ट है उस पॉइंट पे। देखिए, फैमिली बिजनेस में पहली बात तो मैं बता दूं कि समस्याएं जो भी है, खास करके फैमिली बिजनेस में, वो बड़ी बड़ी बातों को लेके नहीं होती है, वो होती है छोटी छोटी बातों को लेके। ये आप अक्सर देखेंगे, हमको सबको अपना अपना अनुभव रहेगा, तो छोटी छोटी बात को लेके आता है। उसमें एक होता है खर्चे के लिए होता है, फिर सबसे बड़ी जो एक परंपरा है वो भी थोड़ी गलत है कि अगर बड़े का बेटा जो सबसे बड़ा हो गया तो वही उसको लीड करेगा। ये एक सबसे बड़ी गलत परंपरा, एक जो जॉइंट फैमिली में जो बरसों से चलती आ रही है, वो उम्र के हिसाब से नहीं, कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो कहा कि कैपेबिलिटी असेसमेंट होना ही चाहिए,
उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन लोग घबराते हैं। मैं केवल ऐसा, जैसे मेरे को मालूम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बताने इसलिए घबराता हूँ कि डॉक्टर बता देगा बीमार हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो तू आराम कर, इसलिए मैं डॉक्टर से हटता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि हर चीज़ की सुविधा है। आजकल आप एक कोच को हायर कर सकते हैं। पहली बात तो घर में मिलकर बात करना चाहिए। जी जो अगर समझो ज्वाइंट फैमिली में सबसे अगर 2 भाई है या 3 भाई है या 4 भाई है, कुछ जगह तो सर 3-3 4-4 पीढ़ी से लोग साथ में हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि सबको पहले अपने पुत्र संतान मुंह से निकलना पड़ेगा। इसे टेक इट जो ग्रांटेड लेके रखा ना हर चीज का, ये परंपरा गलत है। इस प्रकार के कारण से बहुत सारा तकलीफ है, आगे चल के भी होगी। सी आई एम अ फर्म बिलीवर। जी अगर जैसे मैंने हम लोग ने कंपनी चालू की थी, तो मैंने 20 साल पहले अनाउंस किया था, जिस दिन मेरे से केपेबल आदमी मिल गया तो आई विल वर्क अंडर हिम एंड वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि मैंने शुरू किया इसलिए सारे के सारे लोग मेरे अंडर में होने चाहिए, ये गलत फहमी है। तो ये ज्वाइंट फैमिली में ये जो कुछ कुछ बातें होती है, लोग बोलते हैं कि घर की महिलाओं के कारण से झगड़ा होता है, ये गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि मेरे से नहीं संभला गया इसलिए उसके ऊपर आरोप डाल देना, ये भी एक परंपरा बहुत बड़ी है। तो जी भाई तो आप सगे थे ना सर, तो आपने उसके लिए क्या किया? कुछ त्याग किया क्या? कुछ तपस्या की क्या? आपने अपना पावर छोड़ा क्या? हाँ, इसमें एक चीज जरूर होती है कि पब्लिकली परिवार में एक ही व्यक्ति का नाम होता है, तब तक ही चलता है। जिस दिन पब्लिकली परिवार का में से एक व्यक्ति के बदले 2 व्यक्ति का नाम जाना शुरू होता है, तब भी ये तकलीफ होनी शुरू होती है। क्योंकि एक व्यक्ति अलग बोलता है, एक व्यक्ति अलग। अब ये केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको, वीडियो कॉन फैमिली, 3 भाई है, नाम वेणुगोपाल दूध का आएगा, बाकी 2 का नहीं आता है। तो 2 को समझना पड़ेगा कि भाई एक जन उस लायक है तो वो आगे रहेगा। आज फ्यूचर ग्रुप में 2 भाई और उनके 5 लड़के साथ में है। किशोर भाई सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन बाकी 4 भाई को कोई जानता है क्या? राकेश को, विजय को, या बाकी भाई को कोई जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो एक ही जन का नाम आता है, किशोर भाई का नाम आता है। तो ये भी एक आपको एक घर में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ठीक है भाई, जब पहले प्रोमोटर में नाम आएंगे, सबके नाम आएंगे, पब्लिक इशू में नाम आएंगे, जब प्रेस रिलीज होती है तो आपके तीनों भाई, चारों भाई, जो भी सबके आप नाम डाल दो। लेकिन पब्लिकली जब तक एक ही व्यक्ति रहेगा, तब तक आपका ये परिवार टिकता है। फिर होती है बीमारी खर्चे के लिए, कि आपने गाड़ी बड़ी ले ली, उसने छोटी ली। तो घर में छोटी छोटी बातों के नियम बन जाने चाहिए, खर्चे की लिमिट को लेके, काम को लेके। और कभी भी घर में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले बोला था कि कंपटीशन और कंपैरिजन, आपस में कंपटीशन होना चाहिए काम करने का, लेकिन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन की भावना जब शुरू होती है ना, तब ये बहुत सारी तकलीफें जो आनी शुरू होती है। एक बड़ा चैलेंज है, सर डिफिकल्ट ऑल्सो, ऑनेस्टली बताता हूँ। क्योंकि एक मानव समाज है, कुछ कुछ लोगों में तो कंपैरिजन की बीमारी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपैरिजन मानते नहीं है, और नहीं मानने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन कंपैरिजन करना, क्योंकि क्या हो गया कि शायद ये हम लोग ने इतने साल गुलामी में रहे ना सर, 150 साल अंग्रेजी की गुलामी, फिर 700 साल मुसलमान गुलामी रहे, तो वो एक गुलामी जैसे आदमी होगी, इसके साथ भी कंपैरिजन करते हैं। तो एक कंपैरिजन से बाहर निकलना चाहिए, खर्चों की बात को लेके अपना होना चाहिए। अगर बड़ी फैमिली है तो बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, एक ही बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, जैसे हमने किया हुआ है। हमारे ऐसे छोटे मोटे 19 बिजनेस है, ठीक है, 4 बिजनेस में टॉप में, बाकी 4 बिजनेसेस में इंडिया में टॉप 3 में है। केबल में, वाइंडिंग वायर में, इंडिया के लार्ज केबल एक्सपोर्टर है। कुछ बाहर भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अलग अलग बिजनेस कर दिए, ताकि एक एक बच्चे अलग अलग काम संभाले आज इनिशियली, बाद में धीरे देखें आगे कैसे होता है। तो वेल्थ को और मैनेजमेंट को दोनों अलग कर दे। तो अगर वेल्थ को भी आप अलग करके ठीक सेट कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट टिक जाता है। आप दोनों में अगर क्लियरिटी नहीं रखते हैं, आइडियली दोनों में क्लियरिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर वेल्थ पार्ट को भी क्लियर कर ले, तो आधी समस्या हो जाती है खत्म। फिर आती खाली मैनेजमेंट की बात को लेके। और मैनेजमेंट अगर दोनों अगर आप क्लियर कर सकते हैं, वेल्थ का, मैनेजमेंट का, घर में खर्चे का, ये 3 चीजों का अगर हम लोग समावेश कर ले और घर के कल्चर के नीति नियम पे ध्यान देंगे, तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे हम निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। काबरा जी, जितना किसी भी व्यक्ति की सक्सेस, किसी भी व्यक्ति को अपनी सक्सेस से सीखने को मिलता है, उतना ही या कहीं उससे ज्यादा कई बार जो डिबैकल्स या ड्रॉबैक्स आते हैं या शॉर्ट चैलेंजेस आते हैं, उससे सीखने को मिलता है। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपना बिजनेस 15 साल में 15 लाख से 6,500 करोड़ तक पहुंचाया, तो सक्सेस तो है अपनी जगह, सबको दिख रही है, बट कई चैलेंजेस भी आए होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी आए होंगे।
तो उससे आपने कैसे सीखने को मिला या उससे कैसे सीखा जाए? पहली बात तो ये 15 लाख का ये 15 साल में नहीं आया सर, कि ये अपने को सॉरी। 40-42 साल जी लगे, जी बता जी दूं मैं जी आपको। जी जी। तो बेसिकली क्या है, देखिए कि सारे के सारे बिजनेस सक्सेसफुल वैसी बात नहीं है। लोग तो खाली सक्सेस वो देखते हैं ना। सी दो चीजें, एक तो सक्सेस हुआ उसको देख रहे हैं, सक्सेस के पीछे क्या मेहनत थी उसको भी कोई देखेगा। लोगों को लगता है क्या बात है यार, आज तो ये बस सिंपल है। तो चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। सक्सेस है ना, हमने भी जो आर काबिल को जब सब चालू किया ना सर, तो उसके पीछे पूरा पर्पस और ऑब्जेक्टिव बनाया। सी तकलीफ कहाँ होती है बताता हूँ मैं आपको, कि हम जब व्यापार चालू करते हैं या व्यापार एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते। ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी समस्या खाली हम जो फिगर के चक्कर में रहते हैं ना। सिर्फ गोल आपका बनना चाहिए। मैं बोलता हूँ गोल के तरीके बताता हूँ मैं, अलग अलग होते हैं। एक ही चीज के आप 10 तरह से गोल बनाइए। आपका जैसे हमारा जो टारगेट था पहले कि भाई हमारा, आज हम लोग 85 कंट्री में, अभी लॉकडाउन में 7 कंट्री और 92 कंट्री में हमारा प्रेजेंस है, अलग अलग आइटम को लेके, राइट। तो हमारा शुरू में था विश्व के लार्जेस्ट केबल एक्सपोर्टर, हमारे इतने रिटेलर होने चाहिए, हमारे इतने स्टेट में हमारा काम होना चाहिए। तो आपके गोल को 1 2 3 4 5 10 भाग में आप बांट दीजिए, आपके असफलता के कारण नहीं रहेंगे। लेकिन जब खाली टारगेट ही हो गया कि मेरे को तो इतना बड़ा टर्नओवर करना है और इतना प्रॉफिट करना है, तो ये सारी गड़बड़ होती है। इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव और पर्पस को रीडिफाइन करके, ऑब्जेक्टिव और पर्पस को बनाने में जितना समय देना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान देंगे। हमने भी कार पार्किंग कंपनी, आज हम लोग इंडिया में नंबर 1 है टुडे, राइट। हमने 11 साल घाटे में चलाई। आर काबिल का हमारा 5 ईयर्स प्रॉफिट आया। वो 5 ईयर्स प्रॉफिट आना हमारा एक मास्टर प्लान में था, क्योंकि हमको सेल्स ड्रिवन कंपनी नहीं बनाना था, हमको मार्केटिंग ड्रिवन और ब्रांड क्रिएशन करना था। तो हमने टारगेट किया था, पहले साल में हम 2.5 करोड़ नुकसान करेंगे, दूसरा इतना नुकसान करेंगे, तीसरे साल करेंगे, चौथे साल, 5वें साल हम कमाएंगे। तो हमने एक पर्पज और ऑब्जेक्टिव बनाया। ऐसे नहीं और भी बाकी बिजनेस में नुकसान किया, ऐसा नहीं। हमने बिजनेस चालू करके, हमने एक ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, हमने बंद किया। मैंने गारमेंट बिजनेस चालू किया, 1.5 साल किया, बंद किया। तो कई सारे, यानी स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, वो बंद किया। तो आज आर काबिल दिख रहा है इसलिए समझता। तो कई बिजनेस, आपको बिजनेस को एग्जिट करने में कभी नहीं घबराना चाहिए। सबसे एक कहने इसमें एक ही डिबाकल के समय या क्यों उसके पहले, आपको बिजनेस को एग्जिट करने में कभी नहीं घबरा। लोग क्या होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मैंने इसके लिए मेहनत किया इसलिए नहीं छोड़ते हैं। वो दलदल में, खड्डे में घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं। तो राइट समय ऐसा लगता है कि नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मेहनत की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। जैसे सफलता को स्वीकार किया वैसे असफलता को स्वीकार करके होना चाहिए। बिल्कुल सर। काबरा जी, कुछ क्वेश्चंस आज के स्पेसिफिक टाइम जो कोरोना या कोविड का टाइम चल रहा है और जो उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, क्या सेक्टर्स आपको लगते हैं कि ये डेफिनेटली वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, बिजनेसेस आर गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस कोविड लॉकडाउन इज ओवर एंड आफ्टर दिस होल इंटरनेशनल भी, यूएस, चाइना, जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं, सो क्या बिजनेस सेक्टर्स नए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या किस टाइप से चेंजेस आपको लगता है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड सबको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो लंबा चलेगा, ये पक्का है। जो बिजनेस तकलीफ है वो होटल, टूरिज्म, एयरलाइंस, लग्जरी गुड्स, गारमेंट में इनिशियली 4-6 महीना थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि जैसे कल भी पढ़ रहा था कि आपको ट्रायल करने नहीं मिलेगा। अच्छा, लोगों को सैलरी कट का माहौल भी बनेगा, घर में रहें तो सेविंग का भी एक माहौल बना है। घर में हेल्दी फूड खाने के कारण से आने वाले 1-1.5 साल तक लोग कम बीमार होंगे, क्योंकि लोग अपना 2 महीने घर में रहेंगे, स्वास्थ्य भी बना है। तो हॉस्पिटल का भी अगर देखते हैं, डॉक्टर्स का बिजनेस भी आगे डाउन लगता है। अब ये सैलून, स्पा, ये सब जो बिजनेस है, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा मेरे को लगता है तकलीफ आएगी। मैन्युफैक्चरिंग में इतना नहीं आएगा। लेकिन जो अच्छा लगता है मेरे को आगे, वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा अच्छा स्कोप लग रहा है। और ये वर्क फ्रॉम होम अगर वाकई में सक्सेसफुल होता है, जैसे TCS ने अनाउंस किया है कि 50% लोग घर से काम करेंगे, तो इससे इनकी कॉस्ट कम होगी और जो लोग घर से काम करेंगे, लेकिन फिर से कहूंगा कि आज जिस घर में रहते हैं उससे काम करेंगे तो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए कोई इन्वायरमेंट जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक होगा। तो ये वर्क फ्रॉम होम के कारण से जो घर में लगने वाले सामान है, उसका काफी फ्यूचर ब्राइट लगता है। तो एक ये 2-3 सेक्टर अच्छे थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है, चाइना के अगेंस्ट लोग जाएंगे, बात पक्की है।
जहाँ भी रहे एक्चुअली 1.5-2 साल से माहौल था, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में, इसलिए बताता हूँ मैं, ये तो समझो एक बहाना भी और मिल गया। आग तो लगी हुई थी, ऊपर से उसमें घी और डाल दिया तो आग पूरी लग गई। तो ये सारे बिजनेस काफी इंडिया में आने की संभावना है। तो ये सब बाकी रूटीन बिजनेस काफी जो है सितंबर से काफी ठीक हो जाना चाहिए। अभी 6 महीने का ये चैलेंज है, तो 6 महीने में हमको बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान कम देने के बदले जो हमारे लोग काम करते हैं उन पे ध्यान देंगे, हमारे सप्लायर पर, हमारे कस्टमर पर ध्यान देंगे, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। वापस इंडिया विल कम आउट इन मच बेटर वे। और अक्टूबर के बाद इंडिया की इकोनॉमी काफी जोर में आएगी, क्योंकि इनमें जो अनाउंसमेंट भी चल रहे 20 लाख करोड़ के, इसका इफेक्ट भी पूरा जब आ जाएगा उसकी और स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी फुल प्रूफ आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन खुलता नहीं है, कोरोना का इंजेक्शन नहीं आते, इसके वैक्सीन नहीं आती है, दवाइयाँ नहीं आती है, उसके बाद ही रियल मालूम पड़ेगा। लेकिन चेंज बहुत पक्का है, मालूम ये बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाला है काम का तरीका। बिल्कुल। इसमें जो कोरोना से पहले बात हो रही थी, पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी वन वर्ल्ड की बात हो रही थी, जैसे आप भी 85 कंट्रियों में काम करते हैं, और अभी ऑनरेबल पीएम ने नया कॉल दिया है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल। तो इन चीज़ों से जो जितना पुराने लोगों ने बिजनेसेस ने अब्रॉड इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, बिजनेसेस सेटअप किए हैं, लिंकेजेस किए हैं, उन पे चैलेंजेस नहीं आएंगे? नहीं आएगा। क्या है कि ऐसी जो प्राइम मिनिस्टर ने वोकल लोकल की बात की है वो एक भावनात्मक है, और हमको सबको 1.5 साल ये चलेगा। ये क्या होता है कि जैसे हम जब शमशान में जाते हैं ना किसी को पहुंचाने, तो शमशान में जब जाते हैं तो उस समय थोड़ा माहौल अलग रहता है, यार आज के बाद किसके लिए करना है, ये करना है। फिर वापस शमशान से बाहर आके हम आते हैं घर में नहा धो के, और अगले दिन अपना वही दुकान हमारी चालू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक है, लेकिन इसका एडवांटेज जो इंडियन लोगों को काफी मिलेगा, लेकिन इससे फॉरेन में हमारे काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी कंट्रियां खुद के सेल्फ रिलायंस के हिसाब से आएगी, कि जैसे मैं कल नाइजीरिया बात कर रहा था, तो वो लोग सोच रहे हैं कि बोल हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि अब दवाइयाँ हम लोकल बनाएंगे क्या, तो लेकिन वो कितनी कंट्री की क्षमता जो करेगी, जो इंडिया की क्षमता है, तो इंडिया को इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बाकी जो कंट्री के लोग हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, तो इंडिया, मेरे को ऐसा लगता है जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था, इंडिया सर्विस सेक्टर का हब था आईटी में। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम को वास्तव में अगर सक्सेसफुल किया जाए तो 10 करोड़ लोग इसमें वर्क फ्रॉम होम से, इंडियन कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, जैसे हमने भी हमारी कंपनी कैलकुलेशन किया हमने कि हमारे यहाँ भी 50-60 लोग जो है कम से कम वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो चलता है। तो ये एक मेरे को लगता है कि उसके कारण से हमारी कॉस्ट विल कम डाउन, सो अल्टीमेटली विल बी मोस्ट कम्पिटिटिव। जो फिर गवर्नमेंट जो पोर्ट बनाने जा रही है, जो रोड पे इन्वेस्टमेंट होगा 3-4 साल में, तो आज जो हमारा कम्पिटिटिवनेस जो कम है, वो कम्पिटिटिवनेस आएगा और इंडिया विल हैव कंज्यूम स्टोरी। और ये साल में बताना आपको, खेती की उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, तो रूरल में काफी डिमांड रहने वाली है, शहरों में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, खासकर हमारे मुंबई या दिल्ली या अहमदाबाद जैसा, तो डिमांड रहेगी। यानी कोई इससे वोकल का लोकल में आएगा, लेकिन सब कंट्रियां इतना ताकत नहीं है सकती, लोगों की पॉपुलेशन ही नहीं है, लोग बस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो वोकल एंड लोकल की बात हमारी सरकार इसलिए कर सकती है पॉसिबल है। और दूसरा उनका वोकल लोकल के, जहाँ तक मैंने ट्विटर में भी किया था कि अरे उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि जो हम लोग ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं घरों में खाने पीने का, उससे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये कोरोना के समय में जो हमारे आजू बाजू लोग किराना स्टोर वाले जो मदद की, हमको उनको भूलना नहीं चाहिए, वरना असर हमारे घरों में खाने के और अपना सब्जियों के या फ्रूट्स की तकलीफ हो जाती थी। तो वी शुड हेल्प देम। वो बट ही कैन नॉट टॉक इनडायरेक्टली, क्योंकि अमेजन और बाकी सब कंपनी के ऑनलाइन में इतने इन्वेस्टमेंट आ गए। तो प्राइम मिनिस्टर की बात को भी क्या है, समटाइम्स हमको बहुत सोच समझ के उसको लेना चाहिए कि ही इज आल्सो गॉट सम लिमिटेशन टू टॉक वेरी ओपनली। तो मेरे को लगता है वो वोकल लोकल का ये भी एक बातें थी उसमें। सर, दो आखिरी क्वेश्चंस लूंगा क्विकली। एक हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है मनीष डाफरिया जी, उनका क्वेश्चन है कि जैसा आपने बताया ऑलरेडी कि बिजनेसेस का सिर्फ पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, उससे कहीं आगे होना चाहिए, जो आपका ऑलरेडी आपके ग्रुप का है और कई लोगों का है, बट देन बहुत सीमित लोगों का है। आपको लगता है कि कोरोना के बाद ये चीज बाकी बिजनेसेस भी अडॉप्ट कर पाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ पाएगा कि बिजनेसेस प्रॉफिट से आगे देख पाएंगे अपने आप को? जो देख पाएंगे सुखी रहेंगे, जो नहीं देख पाएंगे वो तकलीफ वाला काम है। देखिए बेसिकली सीएसआर अभी आया है, बरोबर है, लेकिन हमारे जो ओरिजिनली अगर देखे पूर्वज, तो उन्होंने काफी दान धर्म करते थे। बीच की एक पीढ़ी आई सर, वो भटक गई थी। वापस की यंग जनरेशन ऑल्सो वांट टू पे बैक सोसाइटी। तो मेरे को लगता है कि अब कोरोना में शायद ये और लोगों में समझ में आएगी। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 2% सीएसआर उसको 5% कर दिया जाए, और हमारा सीएसआर को एक्सपेंसेस में लाओ करे, इनकम टैक्स 2% कम कर दे।
तो ये पीएम केयर फंड में इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सोशल काम हम लोग कर रहे हैं। इसी कारण से एक देश में एक भावना बनेगी दान धर्म की। सीएसआर ने एक सबसे अच्छा काम क्या किया, वो हिंदी दान धर्म को शब्द को अंग्रेजी में करके जो जितनी भी चीजें आई है वो हमारी ओरिजिनल चीजें थी, फॉरेन गई, उसके ऊपर जो अंग्रेजी चोला पहना के उसको एक मार्केटिंग कर दिया और सीएसआर हमको अच्छा लगने लग गया क्योंकि कंपल्सरी हो गया। लेकिन वैसे भी जो पुराने जमाने में हमारे कहावत थी सर कि आपकी कमाई का एकाना यानी 6.25% जो है वो दान धर्म करना चाहिए, तो वास्तव में करेंगे, मेरे को लगता है करेंगे। लोगों को समझ में आ गया कि पैसे का महत्व नहीं है, कोरोना ने ये तो सिखाई दिया। देखिए कितने दिन वो लर्निंग रहती है, जैसे आपने बोला कि आदमी वापस आके घर आके नहा धो के वापस दुकान पे बैठ जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन, सिंस आपने भी इंदौर का इतना जिक्र किया है, सारी ऑडियंस इंदौर की है, तो आपका इंदौर के बारे में क्या लुकआउट है, और स्पेसिफिकली आपने जैसे वर्क फ्रॉम होम में इंदौर पे आपने फोकस दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट में भी इंदौर मेंशन कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है इंदौर में क्या और चेंजेस आने चाहिए और क्या स्कोप है इंदौर का फ्यूचर? इंदौर में एक तो सबसे बड़ा फ्यूचर है लॉजिस्टिक का है जी, और आपके जो खाने की आइटम का है, जो आपके यहाँ नमकीन जो बनते हैं या समझो पास्ता है या आपके सोयाबीन से रिलेटेड आइटम है, उसका काफी स्कोप है। लेकिन इन सब कंपनियों ने ग्लोबल जाना चाहिए सर। आज हमारे को आकाश के और प्रकाश के नमकीन अपना फॉरेन में नहीं मिलते, हमको यहाँ से लेके जाना पड़ता है, जबकि हल्दीराम का वहाँ मिल जाता है या भिकाजी का वहाँ मिल जाता है। तो इंदौर, ऑल द माय हम्बल सजेशन रिक्वेस्ट टू ऑल इंदौर पीपल दैट लेट्स गो वेरी अग्रेसिवली इनटू एक्सपोर्ट। अब तो आपके यहाँ ड्राई पोर्ट के सारी कंटेनर की फैसिलिटी भी हो गई है, फार्मा कंपनी का इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, जबरदस्त हुआ है। तो इंदौर कैन बी राइट डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट्स। हम भी हमारा एक नया बिजनेस चालू कर ना, इंदौर में फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं प्रीतमपुर में जगह अलॉट, क्योंकि इंदौर से क्या लगाव है, होंगे आप थोड़ा बेटी है इसलिए दो ही है, तो एक लगाव है। तो इंदौर में हम लोग फैक्ट्री भी लगा रहे हैं। इंदौर इज द राइट इन्वायरमेंट है, कल्चर है, और जैसा बताया कि इंदौर का एब्जॉर्प्शन बहुत हाई है बाहर के लोगों को स्वीकार करने में, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और प्लस क्या है कि संस्कृति भी अच्छी है वहाँ की। तो आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर इन इंदौर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जो सारी जब रोड बन जाएगी तो नावाशाह पोर्ट बम्बई से इंदौर से मेरे ख्याल से 12 या 13 घंटे में 3 साल बाद ट्रक पहुंच जाएगी। तो यू आर द नियर द पोर्ट। पोर्ट तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन इंफ्रा के हिसाब से आपका काफी अच्छा हो जाएगा। तो आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फ्रॉम इंदौर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली फूड आइटम में करना चाहिए। फार्मा में है ही आपका, ऑटोमोबाइल 3-4 सेक्टर तो आप लोग के पास है ही है, और बाकी भी नए नए सेक्टर इंदौर में आ सकते हैं सर। क्योंकि क्या है कि महाराष्ट्र में वो वातावरण नहीं है, गुजरात काफी महंगा हो गया है, क्योंकि हमारा मेजर सेटअप गुजरात और सिलवासा में, तो गुजरात काफी महंगा है इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ पावर, लैंड कॉस्ट, और इन्वायरमेंट भी वो नहीं है जो पहले मोदी जी के समय था। तो इट्स नॉट, तो एमपी कैन बी गुड प्लेस, इंदौर स्पेशली। जी, so we are right on time. Thank you so much काबरा जी, it was a great learning session. कई सारी I'm sure सारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखने को मिला है। कई सारी चीजें आपकी मैंने भी नोट करी हैं और I'll try to implement, जैसे आपने बताया इंटरनल ब्रांड बिल्डिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड मीटिंग, and our main target should not be a main product, but should be a byproduct of what we are trying to achieve. So thank you so much for all the insightful learnings, and it has been a pleasure listening to you. I would request Akhilesh Rathi ji to say the closing remarks. I think Kabra ji, it's been a very practical session coming straight from the heart. आपने कहा कि दिमाग की बात इंग्लिश में करता हूँ और दिल की बात हिंदी में करता हूँ, तो आपने आज बहुत ही दिल से संस्कारों को आपने एक माला में पिरो के कि कैसे आपने एक 6,500 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन बनाया और सबको प्रेरित किया। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने वास्तविक में लोगों को एक डीप थिंकिंग के लिए इनपुट दिया है कि भैया अपना कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बिल्टअप करिए। एक्सटर्नल इंटरनल प्रवीण जी ने काफी चीजें समअप करी हैं, बट वी आर रियली ग्रेटफुल। और थोड़ा सा डिले हुआ, सभी पार्टिसिपेंट से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सभी लोगों ने पूरे उत्साह से आखिरी तक ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।